Good morning, everyone. This video is prepared for the purpose of making clarification regarding question number 55 from APC Goel book. The question was that X, Y, and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3 ratio 2. Their capital fixed are rupees 2 lakh, 1 lakh 50,000, uh, rupee 1 lakh 25,000 respectively for the year ended 31st March 2018. Interest on capital was credited to them at the rate 8% instead of 10%. Give adjusting journal entry. The solution I made from this information, the first I prepared the analytical table. In analytical table, first I just reverse the situation. That is interest on capital provided at the rate 8%, which is wrongly credited to the partners. So I reverse the situation. I calculate the interest in capital uh, on their fixed capital, that is X fixed capital rupees 2 lakh is given in the question, and interest provided on this capital is rupees 16,000. Similarly, Y's fixed capital is rupees 1 lakh 50,000 at the rate 8%, and the interest on capital would be 12,000. Z's fixed capital rupees 1 lakh 25,000 at the rate 8 rupees. The interest on capital would be 10,000. So the total profit the firm just has adjusted according to the interest on capital at the rate 8%, that is 38,000 according to the information given in the question. First just I reverse the condition. Then after that I provide the interest on capital at the rate 10%. So how much profit we need to distribute the interest on capital at the rate 10% per annum. So I calculate the interest on capital at the rate 10%, that would come for the X rupees 20,000, and for the Y it would become 15,000, and Z 12,500. For providing interest on capital at the rate 10%, we need more profit of rupees 9,500. But there is no information regarding sufficient profit in this question. Only information we have given in this question, that is interest on capital is credited at the rate 8% per annum. So we cannot assume here by ourselves that the firm has sufficient profit to distribute interest on capital at the rate 10%. But we deduce the information that the firm had profit of rupees 38,000, which is to be allocated according to the question, that is interest on capital at the rate 10%. For this, we need to find the ratio of interest on capital at the rate 10%, which are as follows: 20,000, 15,000, 12,500. तो रेशियो निकल करके आएगा यहाँ पे 8:6:5. फिर हम इसके अकॉर्डिंग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 38,000 जो हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास रखा हुआ है, अब हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि 47,500, क्योंकि हमारे पास 9,500 का प्रॉफिट, हमारे को पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम अपने पास से कुछ भी एडअप नहीं कर सकते। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमें उसी इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है। तो इस 38,000 के उसमें से जब आप एलोकेट करोगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो आपने निकाला है यहाँ पे 8:6:5, अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अगेन सेम विल हैपन। एक्स को 16,000 मिलेंगे, वाई को 12,000 मिलेंगे और जेड को 10,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं होगा, तो कोई एंट्री ही नहीं होगी। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको टीएस ग्रेवाल की बुक में दिखाता हूँ कि टीएस ग्रेवाल की बुक में भी सेम यही कर रखा है, बट दिस इज नॉट अ गुड। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना। आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है आपको उसके अकॉर्डिंग करना होता है। टीएस ग्रेवाल की बुक में आप इलस्ट्रेशन 43 देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हायर रेट पे है, पहले आपको हायर रेट पे प्रोवाइड कर दिया, आपको उसको लोअर रेट पे प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हो, चाहे आपको प्रॉफिट फिर बाद में गिवन हो या नहीं हो, आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके आपने 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया था, यानी कि आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट होगा। अब जो यहाँ से जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा उसको आप शेयरिंग कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है उसके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो वहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हो, जैसे आप एनालिटिकल टेबल में देख सकते हो यहाँ पे कि पहले यहाँ पर दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम। नाउ रिवर्स 30,000 डेबिट कर दिया, ठीक है, 20,000 डेबिट कर दिया, 10,000 डेबिट कर दिया, टोटल हो गया 60,000 यहाँ पर फर्म के उसमें क्रेडिट कर दिया, यानी कि फर्म के पास अब प्रॉफिट 60,000 का है। अब आप इसमें से अगर 8% दोगे देना होगा तो आप इजीली दे सकते हो। आप एक्स को 24,000 क्रेडिट कर सकते हो, वाई को 16,000 क्रेडिट कर सकते हो, जेड को 8,000 क्रेडिट कर सकते हो। उसके बावजूद भी आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाता है आपका
ये 12,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 6,000, 3,600, 2,400, यहाँ पर आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट है। ठीक है। अब जैसा आपका क्वेश्चन नंबर एपीसी गोयल का 55 था, ऐसे इलस्ट्रेशन 44 है यहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस अलाउड। यहाँ पर आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 9% पर एनम का दिया था, आपको देना कितने का था, 12% का देना था आपको। तो सेम यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे ही करा है कि जो पहले देख लिया कि जो एक्सेस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर एक वर्किंग नोट पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन क्रेडिटेड एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ 12%, सो इंटरेस्ट एट द रेट 3% should be credited to partners, and the total of this should be debited to partners in their profit sharing ratio because firm's profit is reduced up to that extent। यहाँ पर जो लाइन लिखी है ना उनकी, द टोटल ऑफ दिस शुड बी डेबिटेड टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज द फर्म्स प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई ना इसके रिगार्डिंग। देखो यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट लिखा है कि सफिशिएंट प्रॉफिट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है, अभी ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। देयर कैपिटल, हमें फिक्स कैपिटल दे दी है उनकी, ए की 1 लाख है, बी की 280,000 है और सी की 70,000 है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 9% पर एनम। कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, आप पहले 9% दे चुके हो तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप 12% भी दे सकते हो, 3% और एक्स्ट्रा आप दे सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। अब अगर आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है एसबीपीडी अकाउंटेंसी की, उसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए सफिशिएंट प्रॉफिट की, तभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई एडजस्टिंग जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे आप। पहले 46 पढ़ के सुनाता हूँ आपको इलस्ट्रेशन। X, Y, and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their fixed capital were rupees 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh respectively. For the year 2015, interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. Showing your working notes clearly, pass the necessary adjusting journal entry। यहाँ पर आपको जो क्रेडिट करा है आपने 10%, आपने ज़्यादा कर दिया, आपको कम करना था 8%, तो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, उसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पर आपको करके दिखा रखा है, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से यहाँ पे कर रखा है। ठीक है। अब मैं इलस्ट्रेशन 47 पढ़ के सुनाता हूँ जो कि पूरा क्लैरिफिकेशन देगी आपको टीएस ग्रेवाल की गलती का और एपीसी गोयल की बुक की गलती का, कि उन्होंने सॉल्यूशन में कितनी मिस्टेक वहाँ पे कर रखी है। D, E, and F are equal partners. Their fixed capital as on 1st April 2018 were D rupees 1 lakh, E rupees 2 lakh, and F rupees 3 lakh. Profit for the year 2018-19 amounting to rupees 1,20,000 were distributed। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे दिया गया है कि आपके पास जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है 1,20,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है यहाँ पे। ठीक है। अब आपने उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दिया होगा तो रिमेनिंग आपने जो प्रॉफिट बचा होगा उसका आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास। ठीक है। बाकी जबकि हमें जो एपीसी गोयल की बुक है और टीएस ग्रेवाल की बुक है वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन इन्होंने देखो किस तरीके से कर रखा होगा। ठीक है। इंटरेस्ट दैट ऑलरेडी क्रेडिटेड एट द रेट 10%, सिचुएशन रिवर्स करी जा रही है, पहले 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, 60,000। इंटरेस्ट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जितना मैं करना चाहिए था 12%, तो 12,000, 24,000, 36,000, टोटल आ रहा है 72,000। यहाँ पर जो एक्सेस आ रहा है 12,000। अब हमारे पास प्रॉफिट है हमारे पास, तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल प्रॉफिट हमें जो गिवन है, कितना गिवन है, 1,20,000 हमें गिवन है। तो यहाँ पर जब भी हम एलोकेशन कर रहे हैं 72,000 की एलोकेशन कर रहे हैं, तो यानी कि रिमेनिंग प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर हम रिमेनिंग प्रॉफिट को लेकर के कर सकते हैं। यहाँ पर जो 12,000 आ रहा है अब हम इसको लेकर के कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास प्रॉफिट है, हम उसको रीएलोकेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो 4,000, यहाँ पर इसको 2,000 और क्या करने थे आपको, क्रेडिट करने थे। डी के क्या उसमें कैपिटल में आपको 2,000 और क्रेडिट करने थे, ई के कैपिटल में आपको 4,000 और क्रेडिट करने थे, एफ के कैपिटल में आपको 6,000 और क्रेडिट करने थे अमाउंट। ठीक है। बट आपने जो करा होगा लास्ट टाइम, बाकी का जो प्रॉफिट 12,000 के अकॉर्डिंग आपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो गिवन नहीं था तो हमने यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट को हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। 4,000 डी को दे दिए होंगे, 4,000 ई को दे दिए होंगे, 4,000 एफ एफ को दे दिए होंगे हमने। हमें डी को एक्चुअली में देने कितने थे, 2,000 देने थे, तो 2,000 वापस इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे।
हमें ई को 4000 देते, 4000 इसके अकाउंट में जा चुके हैं, तो यानी कि इसके साथ हमें कोई वो नहीं करना, कुछ भी एंट्री नहीं होगी इसकी। और एफ को हमें जो कि 6000 देने चाहिए थे, हमने सिर्फ 4000 दिए थे, तो उसको 2000 रुपीज और क्रेडिट कर देंगे इसके अकाउंट में। यानी कि अब हम डी को डेबिट कर सकते हैं और एफ को क्रेडिट कर सकते हैं। डी के अकाउंट से पैसा निकाल करके एफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो जनरल एंट्री यही हो जाएगी, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एफ करंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी 2000 2000। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।